in my Google School. Hmm. So that is the thing. So I like that. Means it is a mind blowing for me. Great, Your thank you. Thank you, class. sir. So before starting, when I started this journey, and I was thinking to create one website for me, and it was a big project. I thought how a website can be made. So it's so simple. I thought like this. What what should I write on my website? How should I design this? Who will design this? I asked many people, and they asked good money from me. And then somebody became ready that I can make your website. Then he asked us, give me content. Now I was blank. What should I write over there? I had nothing. Everything was in mind, but there was nothing which can be painted on the blank pages. So this dilemma went on for many months. Exactly. But after 4 5 months, I came to this idea that till the day you are not starting making your website, your journey is not getting started. Then I started observing other competitors' videos, competitors' websites, and then little idea came out that you can put this thing over there. Then I put that thing in the form of 5 pages. It was the first initial web page, which was so poorly professional page, but it was. I was so happy that I made something, and that I did myself. It was Yes. a designing from myself on Bix platform without any big help of others. Rather, somebody, one gentleman, helped me to understand that environment technically. So I will thank that gentleman. So he guided me, and I could design that. But after creating this website, so I had one more challenge, that mobile application. Oh my God, it is not a simple task. Only programmers can do this work. Engineers can do this work. So you Yes. should know software programming for this. And when I started studying this, and I came to know it can be created without so many efforts. Just a minute, I'm going to. So it can be done. And then we could create this one day. And I was so happy that we have a mobile application now. And the same situation or similar situation remains in the mind of the people when they are going to create their first time website or this mobile application. So, and people ask a lot of money from them. And it's so simple work that just to start with, in case you want to start with, you can create it yourself. Once you think that the thing which you have created is not going to suffice your need is little advanced, your need is little structured, then please assign this work to somebody else outside. And till that time, you would get a lot of depth knowledge about mobile application and website. So the person cannot make you fool. He Exactly. cannot charge a lot of money. He cannot ask a lot of money because you know it already. Yes. So you are going to save your money, one thing, and you are going to create your this legacy for your business, so that you can utilize this fully. You can get the value of this fully because you know every bit of your creation, every bit of your website, every bit of your mobile application. So this way you can do this. And great, so many people have joined. Ramya ma'am, Pratima ma'am, Arabindan ji, Alka ma'am, good evening. And Abhijit ji, good evening. Suraj ji, good evening. Suresh ji, good Good evening. evening. Yes, yes. तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल ऐप बनाया उस दिन? कितने लोगों ने ट्राई किया? हु आई हियर हु कुड डू दिस? कितने लोग ट्राई कर पाए? एक बटन दबाना था, मोबाइल ऐप बनाना था। एक मोबाइल ऐप का बटन दबाना था, 2 बातें लिखनी थी, मोबाइल ऐप तैयार होना था। ऐसा कितने लोग कर पाए? प्रतिमा मैम, आप पहली बार जुड़े हो। हमने पिछली क्लास में आपने अगर जी सर, फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया,
दो तरह का मोबाइल ऐप बनाना सीखा था, जिसका वीडियो आपने देखा था क्या आज? शायद नहीं। हाँ, नो सर, अभी नहीं देखा। नहीं देखा तो आप क्या करेंगे, वो वीडियो मोबाइल ऐप में मैंने आपको ऐड कर दिया है। जब भी आप ऐप ओपन करोगे तो आपको वहाँ एक वो मिलेगा बैच, उस बैच को सेलेक्ट करोगे मोबाइल ऐप मेकिंग का। और सर उसमें तो दिख ही नहीं रहा था, आज मैं ट्राई कर रही थी बट मुझे उसमें दिखा ही नहीं मोबाइल ऐप का ये। मोबाइल ऐप में मैम आप जब ओपन करोगे ना उसे, तो आप क्या करेंगे कि नीचे बैचेस लिखा हुआ है एक जगह। ओके सर। आप अगर अभी कर सकते हैं तो आप अभी करो, मैं अभी करवाता हूँ। बैचेस पर क्लिक करें। हाँ, करते जाओ आप। एक सेकंड सर। एक्चुअली सर आज हमारे यहाँ पावर नहीं है ना, तो इस कारण से मोबाइल का भी स्लो चल रहा है नेट। मैं भी जब तक आज क्लास होती है तब तक ही कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम ऑन द वे समवेयर। मैं भी कहीं रास्ते में हूँ और वहां से आज क्लास डिलीवर कर रहा हूँ। तो जितनी देर चलेगी क्लास उतनी देर चलाएंगे, कुछ कम रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। के लिए होना चाहिए, बताओ बेटे। नहीं, मैंने सेव तो कर दिया है सारे जगह से। यस मैम, प्लीज ओपन करें। आपके बैकग्राउंड में साउंड है मैम। ये तो जी सर। नन्हे मुन्ने नौ निहाल बोल रहे हैं। यस, ओपन कर लें। बैचेस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको आएगा आपका बैच मोबाइल ऐप, और बैच को सेलेक्ट करोगे तो आपको ऊपर एक सफेद पट्टी दिखाई देगी जी। आपकी आवाज नहीं है सर। सर आपकी आवाज नहीं है। सर यस प्लीज। जी मैम। जी सर, आ गया है मोबाइल ऐप डिजाइनिंग। मोबाइल ऐप डिजाइन आ गया, उसको क्लिक कर दो। हाँ, और ऊपर एक पट्टी पर लिखा होगा ओवरव्यू अनाउंसमेंट। हाँ, उसको उंगली लगा के लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कर दो। हाँ, कर रही हूँ सर। वहां वीडियो आएगा लिखा हुआ। जी आ गया सर वीडियो। क्लिक करो और एक वीडियो दिखाई देगा आपको। हाँ, एक दिखाई दे रहा है। हाँ, दूसरा ये जो अभी चल रहा है ये आपको कल सुबह दिखाई देगा। ओके सर, इसको देखना है पहले मुझे। हाँ, पूरा वीडियो। समझ में आ जाएगा। हाँ, माइक आप ये कान पे स्पीकर लगा के उसका लीड पूरा 1 घंटे आप उसको देखना। आपको 2 तरह के मोबाइल ऐप बनाना वो समझा देगा। एक फाइल आपको चाहिए होगी, वो फाइल मैंने आपको ग्रुप में भेज दी है, नहीं तो मैं आपको अलग से भेज दूंगा। ना आए तो मुझसे मांग लेंगे आप व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके सर। तो वो फाइल से आप ऐप बना दोगे। तीसरी तरह का ऐप आज बनाना सीख रहे हैं हम। ये भी बहुत सिंपल है, मेरे साथ आप चलते जाओगे, सब लोग ऐप बनाते जाओगे। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आरबिंदन जी, जयवेल जी, मिस्टर जॉर्ज। यस। सो आप में से कितने लोग ऐप बना पाए, कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया? हाउ मच ऑफ अस हैज प्रैक्टिस दिस? कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया प्लीज? और कितने लोग कर पाए, कितने लोगों से नहीं हुआ? सुरेश पटेल जी, ये पिछली बार हुआ था डे बिफोर यस्टरडे। अच्छा, तो ये दिया था तो मतलब जो ये अभी करूंगा तो कुछ मिस तो नहीं होगा ना? नहीं, आप वीडियो आप वॉच करना, और वीडियो वॉच करने के बाद आप 2 तरह से ऐप बना सकते हो। तीसरी तरह का ऐप बनाना आज सिखा रहे हैं हम आपको। तो आपके पास चॉइस है कि आप कौन सी तरह का ऐप बनाते हो। पिछली बार हमने बताया था कि अगर आपने वेबसाइट बनाई हुई है वर्डप्रेस में, तो आप वर्डप्रेस में एक प्लगइन लगाकर ऐप बना सकते हो। दूसरा बताया था कि आपको एक एपीके कन्वर्टर दिया था हमने, उस एपीके कन्वर्टर में आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखो, वो आपका पूरा मोबाइल ऐप बना के एपीके फाइल क्रिएट कर देता है। तीसरा जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और मेरे साथ चलते हैं हम आगे।
पिछले में किसी का कोई क्वेरी हो, in case you have any query or you have any question, so please let me know. Otherwise, let's move ahead. That APK builder, when you are trying to open and give some details, it is asking for activation code, sir. APK builder, it doesn't ask, sir. So whatever APK builder I have sent, that one, na? Yes, sir. Yes, sir. It doesn't ask actually. So yes, you gave me a call also, so that that time I was not available, but No problem, sir, no problem. so in case What it is asking, so I can so in the morning time, if you are available between 10 to 12, so I would be available. I can connect you on AnyDesk and will let you know how it can be done. Sir. Okay, sir. Okay, so thank you. sir, जी I have प्लीज a question, sir. जी जी ये आपने जो ऐप बिल्डर दिया, ओके, ऐप में अवेलेबल है, मतलब पीपल ट्रेनर ऐप में अवेलेबल है? क्योंकि नहीं, वो ऐप में से डाउनलोड नहीं हो सकता, ऐप में देख सकते हो, तो वो तो डाउनलोड करना था, तो मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा सबको। हाँ सर, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हूँ, ये एक तो आप मेरे को क्या करेंगे, आप मुझे पिंग कर दो, सिर्फ व्हाट्सएप पर लिख के भेज दो कि मुझे एपीके बिल्डर दे दें, मैं आपको एपीके बिल्डर भेज दूंगा। ओके सर, जिनके पास भी एपीके बिल्डर नहीं है, सर वो प्लीज आपने एपीके बिल्डर सेंड किया था ना, वो तो मोबाइल में खुल रहा नहीं, मतलब वो क्या है? मोबाइल में नहीं खुलता, वो लैपटॉप पर, लैपटॉप वर्जन है वो। हाँ, वो लैपटॉप वर्जन है। तो वो मुझे मेल पे लगेगा, तो आप मेल पे सेंड करेंगे? हाँ नहीं, वो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मेल भेज दो, ईमेल आईडी मुझे भेज देना, मैं उसमें भेज दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े, रेडी हैं सब लोग? आर यू रेडी? सो लेट्स मूव अहेड। हेलो, आई एम नॉट गेटिंग वॉइसेस प्लीज। यस सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस। अच्छा, मैं आज मोबाइल डेटा पर ऑपरेट कर रहा हूं, अगर मेरी आवाज ना आए तो प्लीज मुझे बताते चलना। आज मैं कहीं ऑन द वे हूं, कहीं रास्ते में से क्लास ले रहा हूं, तो कहीं आपको जब भी क्वालिटी मिस हो वॉइस की या वीडियो की, तो मुझे आप प्लीज रोक के बता देना, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर थर्ड step, and that is just a minute, will take 1 minute only. Yes. So are you able to see the screen? Screen visible है आपको? Yes sir. Okay. Now we have 4 ways to create app. मैं एक बार फिर रिकैप कर दूं। 4 तरीके से हम ऐप बना सकते हैं। In WordPress itself, WordPress में एक प्लगइन लगाकर, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। जो पिछली क्लास में नहीं थे, the people who were not available in the last class, they can watch it in the recorded lesson, recorded video. And second, website conversion at third party interface means APK builder, वो भी हमने सीख लिया था, ये भी आप सीख सकते हो वीडियो देखकर, वीडियो लेसन देखकर। वीडियो लेसन में अगर आपको नहीं समझ में आए, in case you are not able to understand from recorded lesson, then you can call me in the daytime between 10 to 12. I would facilitate you one-on-one to make your this application, mobile application. So please do not worry. In case you feel hardship somewhere, you can connect me over phone or AnyDesk.
जिन लोगों को वीडियो देखकर, रिकॉर्डिंग देखकर अगर नहीं समझ में आता, वो मुझे 10 बजे से 12 बजे के बीच में कॉल करें। मैं उन्हें फैसिलिटेट करूंगा कि कैसे वो अपना वीडियो इन दो तरीके, आप मोबाइल ऐप इन दो तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा आज तीसरी तरह का ऐप बना रहे हैं हम, वो है ऐप बिल्डर, एंड चौथा है रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स। तो मैं आज दोनों का ओवरव्यू आपको दूंगा। बेटर आज थर्ड पार्ट जो है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स में आपको ज्यादा कुछ है नहीं, वो 5-10 मिनट का डिस्कशन है, वो हम अगली क्लास में भी कर लेंगे अगर आज नहीं हुआ तो। आज हम करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट एट रेडीमेड ऐप बिल्डर्स एंड विदाउट कोडिंग। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट at ready-made app builder and without coding. So there is no need of coding. You can create it easily yourself. बिना किसी कोडिंग के आप अपना ऐप अपने तरीके से खुद बना सकते हैं। यह ऐप बिल्डर पे बनता है। अब ये ऐप बिल्डर कौन से हैं दुनिया में जहां ये ऐप बन सकता है? What are these app builders wherein you can create these apps? So these are the apps: AppyPie, Appri.io, Apps Builder, Game Salad, Swiftick, Nevercode, Business Apps, Mobile Roddy, Shoutem and AppMaker। इतने सारे एप्लीकेशन मेकर हैं। इनमें से किसी पर जाकर आप अपना मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। You can create your mobile app going on any one of these ready-made builders. So you can go online, you open any website, and you have to pay little amount over there. Just pay that little amount, and that is very reasonable kind of amount. In case you could do it, you could find a good builder, then it make your journey easy and possible to create one mobile application for you. So that is the thing. Now for today, I'm going to take one application wherein you can put all your data, you can customize your things, you can select your features, and you can create your website, mobile application. So be with me. आज हम इन 10 में से एक एप्लीकेशन बिल्डर को आज डिस्कस करेंगे। उसमें से आज बनाना सीखेंगे कि कैसे आप अपना मोबाइल ऐप बना सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। पहला स्टेप है सेलेक्ट ऐप बिल्डर। सो आई एम सेलेक्टिंग हियर AppyPie. AppyPie is the good kind of application and its interface is easy to understand. AppyPie का इंटरफेस बहुत सरल है और ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बिल्डर है, इसलिए हम इस पर पहले ट्राई करेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स हु एक्चुअली डू नॉट नो कोडिंग। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोडिंग से कोई अभी तक पल्ला नहीं पड़ा है, जिनको कोडिंग नहीं आती है, जिनको कोडिंग नहीं सीखनी है, एंड द पीपल लाइक यू एंड मी हु आर नॉट कोडर्स, who are not software programmers, who are not software engineers, and who are not knowing a lot of coding. तो उन लोगों के लिए ये एप्लीकेशंस बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपको AppyPie पर लेके चल रहा हूं तो कि कैसे आप अपना वहां एप्लीकेशन बना सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम योर वेबसाइट, whatever is going on in your website, so it is apart from website. आपकी वेबसाइट में जो लिखा है, आपकी वेबसाइट में जो बनाया है वो बिल्कुल अलग है। AppyPie पर कंटेंट बिल्कुल अलग बनेगा। अभी तक जो हमने बनाए थे वो वेबसाइट के ही कंटेंट से हमने मोबाइल ऐप कन्वर्ट किया था, बट यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां ऐप बिल्कुल अलग डिजाइन होगा। आपकी वेबसाइट से वो कंटेंट ले सकता है, बट एक्चुअली इसकी होस्टिंग अलग है, इसकी प्लेसमेंट अलग है। ये कहीं और बनेगा, और जगह होस्ट होगा और जगह अपलोड होगा। वेबसाइट का कंटेंट एज इट इज इसके काम में नहीं आ रहा। तो आई थिंक ये बात आपको सबको क्लियरली समझ में आई हो
कि वेबसाइट का कंटेंट इस अलग है और ये वेबसाइट अलग है। ओके जयावेल जी, यस नाउ। सर ये हमें डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे बनाना है कि मोबाइल पे ही बनाना है? हाँ, ये दोनों जगह बन सकता है, बट मैं आपको अभी इसको डेस्कटॉप पर बनाना सिखाऊंगा मैम। तो जयावेल जी। Sir, yeah, able to follow, sir, but sometimes in between also English, so that. No. So for sure. So you're welcome, sir. Whenever you feel Yes. that you are not following some things, just please put it in the chat box, or you can stop me over there. So this Sure, is there are two kinds of mobile app building. One, there are ready-made applications which can convert your website into mobile application. That facility, that kind of mobile application we have learned in our last class. पिछली क्लास में हमने ये सीख लिया कि वेबसाइट को ऐप में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो बहुत सिंपल था। बट नाउ if you want to create your mobile application separate with some advanced kind of features which actually website conversion doesn't give you, मतलब ऐसे फीचर्स अगर आप लें जो आपका वेबसाइट से कन्वर्ट करने के बाद जो ऐप है वो आपके एडवांस फीचर्स आपको नहीं देता, बट ये आपको यहाँ एडवांस फीचर्स देता है, देन व्हाट वी शुड डू, we have to shift ourselves in a more advanced kind of mobile application. So we are going little advanced now, wherein our website is a separate entity. It is hosted somewhere else. It has its own data, and this mobile application is being created somewhere else. It is being hosted somewhere else. It is being put somewhere else. And it has no so much internal linking with your website. Rather, you can link them, but it has no dependency on your website. आपकी वेबसाइट पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, ये दोनों अलग एंटिटी हैं। तो ये दोनों अलग एंटिटी के लिए then we have to design this. We have to put certain things over there. तो वो कैसे होगा, that we are going to demonstrate now. So this is AppyPie, and what they do charge, what is the expense of creating mobile application on this platform. So that is yes. So the pricing is ₹99 per month. This is the expense, basic expense of this application. And that is the recurring fee. AppyPie generally charge from the subscribers, those who create application there. ऐसे लोग जो एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं AppyPie पर, AppyPie उनसे 99 रुपीज फॉर देयर बेसिक एप्लीकेशन चार्ज करता है। एक साल का 1200 रुपए का खर्च है, और इसमें आपका एक अलग से एप्लीकेशन तैयार हो जाता है। अब इसका स्टेप 2, मैं आपको स्टेप 2 है, एक बार थ्योरी कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। स्टेप 2, नेम योर ऐप। नेम योर ऐप। नेम योर ऐप, तो आपको अपने ऐप का नाम रखना है। तो आप में से कितने लोग हैं जो जिनकी वेबसाइट रेडी है और उन्होंने कोई नाम अपनी बिजनेस का डिसाइड कर लिया है? तो आप सब प्लीज चैट बॉक्स में लिखो व्हाट नेम यू आर गोइंग टू पुट फॉर योर एप्लीकेशन। Yes, please put in the chat box. What is the name of your application you are thinking in your mind? आप अपने दिमाग में अपने ऐप का क्या नाम सोच रहे हो? Please put in the chat box. Your CCTV partner, Attract Health Now. JMD वाले सर, आप इसको 2 शब्दों में बना लो, अच्छा लगेगा, थोड़ा लंबा करके। And Swarna app, okay. Flyto Success, Green Vision, JMD Digital, yes, अब आया ना मजा? Come on, next. Everyone please put your thought here with what name you are going to create your application.
आस्क इंश्योरेंस, पुनीत बत्रा जी, नाइस, बहुत अच्छा। चलिए, सेफ्टी फॉर योर होम एंड फैमिली, इट्स अ लॉन्ग नेम सर. So actually, what is your company name? What's your website name? Put that same name exactly here, exactly same or similar, so that people can search whenever they search your name, then they should search the same thing over there. pmbm.in. ऐप थोड़ा नाम अलग होना चाहिए सर, वो आपका वेबसाइट हो जाएगा pmbm.in. यहाँ कुछ और डिसाइड करो इसको. Lero is okay. Aravindan ji, it's okay. Lero can be a good name. Lero बिल्कुल अच्छा लगता है, बड़ा कैचिंग नेम है. Good. तो ये आपने कर लिया. Then the third step is choose your color scheme over there. It is simple. So they generally give multiple color schemes. You have to choose one of them. आपको वहां से कलर स्कीम में एक कलर चूज करना है. ग्रीन लेना है, डायनेमिक सनबर्स्ट लेना है, टेक्नो ग्रे लेना है, डीप ओशियन लेना है, चीयरफुल एनर्जी लेना है, कार्बन मिस्टिक लेना है. 6 तरह की उनके पास कलर थीम्स हैं. आप उनमें से कोई भी एक कलर थीम चूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. देन कस्टमाइज योर एप्लीकेशन. Customize your application means you have to choose a ready-made interface. So there are so much interfaces available. बहुत सारे इंटरफेस मोबाइल की तरह वहां हैं. आपको डिजाइन चूज करना है, उसका आइकन चूज करना है, उसका बैकग्राउंड चूज करना है, और उसका स्प्लैश स्क्रीन चूज करना है. स्प्लैश स्क्रीन मींस द फर्स्ट इमेज. जब भी आप किसी ऐप को खोलते हो तो जो पहली इमेज आती है दैट इज कॉल्ड स्प्लैश स्क्रीन. तो वो आपका स्प्लैश स्क्रीन कौन सा होगा, बैकग्राउंड कौन सा होगा, आइकन क्या होगा, ये चीजें हमें कस्टमाइज करनी है. देन चूज द राइट टेस्ट डिवाइस. कहां आप इसको टेस्ट करने वाले हो? आर यू गोइंग टू क्रिएट इट फॉर एंड्रॉइड और iOS? देन एंड वेयर यू आर गोइंग टू टेस्ट इट, एट योर आईफोन और योर एंड्रॉइड फोन. सो यू जस्ट चूज. बहुत सिंपल है. इंस्टॉल द ऐप ऑन योर डिवाइस. आप ऐप को अपने डिवाइस पर करें. अभी मैं वापस जा रहा हूं. Here, this was the customized section wherein you were supposed to put your content also here. यहां आपने अपना कंटेंट रखा, बेसिक कंटेंट जो भी आपके पास है. ऐप इंस्टॉल किया अपने डिवाइस पर, मींस यू सेलेक्टेड one option to test your device, because before uploading your device is required to test. means जब आपने ऐप बनाया तो ऐप को अपलोड करने से पहले हमेशा 10-20 बार उसकी टेस्टिंग होगी. तो वो टेस्टिंग आप कौन से एप्लीकेशन पर करने वाले हो, iOS पर करने वाले हो, यानी आप आईफोन पर करने वाले हो या एंड्रॉइड पर करने वाले हो, तो आपको वो सेलेक्ट करना है. Then one APK file would be created, and just install that APK file on your device and add the features you want. What features you want, you can customize it again here and test your device, test your application. And if you think your application is okay, you are okay with it, then please launch it. That is the 9-step formula. Publish your application. And step 10, that is promote your application. Means this is 10-step formula by which you can create and publish your application simply without using any kind of coding. So you can do it, and a layman person also can do this. So आपको जरूरी नहीं है कि आप अगर इसकी प्रोग्रामिंग जानते तो ही कर पाएंगे. ये पूरा 10 स्टेप का फॉर्मूला है जिसे आप आराम से फॉलो करके एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो. I'm going to demonstrate it now practically so that you can see it how actually it happens. What was 9 step, Abhiji? Yes, I'm going to the 9 step. Step 9. Step 9 is publish your app. So publish and testing has a different little difference. Publish means you are putting it
on a I mean Google Play Store or App Store, from where people can see it publicly. But testing means still your file is in your mobile phone, your smartphone, your handheld, wherein you can only test it, wherein you can only check it, you can operate it, but still it is not in the public domain. Publishing means it is going to the public domain now. So that's the next step. So that we will discuss day after tomorrow, how to publish one application. So that's a 10-step formula. Going to demonstrate it live. So this is Appify. Whenever you will go on internet, then you have to type Appify, Appify. Appify, just click on Appify, it will come over there. And whenever you'll click over there, the Appify will open there. Now you have to create your account there. आपको अपना account create करना है. And after creating your account, the interface will look like this. आपका interface ऐसे दिखाई देगा. So this is step 2. When you have created your account here, ये दूसरा step है जब आपने अपना account यहाँ create कर लिया है. Is that okay? यहाँ तक ठीक है सबको? Mr. Jayavel, Mr. Aramindan, are you okay with this? It is simple. You have created account so far. Great. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, next. So now going to the step 3, create new app. Now it is asking you create your native mobile app or create your website. It is giving you 2 options. Native mobile app means you are going to create a mobile application which can be downloaded on a mobile phone like WhatsApp. What create your website means you already have a website and you are just going to convert it into a mobile application. So if you are going to convert your website, then you have to select the second option. And in case you are going to create this native mobile application, means independent mobile application, then you have to create here. So I'm going to create new mobile app. It will ask you the name. So who is going to volunteer me? Please मुझे अपना name दे दें, जो भी आपने ऐप का नाम सोचा है, कोई भी मुझे बताएं, मैं आपके लिए एक ऐप क्रिएट कर रहा हूं. So please give me a name. Mr. Jayavel, give me a name so I can create it for you. Secure Zone, sir. Secure Zone. all. Zone. Is it any? Secure zone. Yes. So secure zone. Yes. And now it will ask the category of your application, what category you are going to create. Business, radio, podcast, restaurant, online store, event, education, religion, health and wellness, news and magazine, location and places, dating, others. So it would be a business. Business. It's a common name. I selected it. Now it is going to ask the color scheme, means themes. So it is giving 6 kind of already created templates. So I'm going to take, so for your business, techno gray would be good option. So I'm taking this techno gray, or carbon mystic also you can take. So I'm taking this techno gray. Now it is asking which device you are going to test on your app. ये अभी पूछ रहा है कि आप अपने एप्लीकेशन को या आप अपना एपीके फाइल जो क्रिएट होगा उसे कहाँ टेस्ट करने वाले हो, where you are going to test it. In case you have Android phone, then select Android phone. In case you have iPhone, then select it iPhone. So because I have Android phone, I'm going to select it Android. It will take few minutes or seconds to just create your APK file, prima facie basic It will file. in general run on all types of mobiles, no? Android and iOS. Yes. iPhone. Yeah. ये आपका yes, next step.
you have to select interface now, means the design and customization. So it gives you a lot of options here. 1, 2, 3, 4, 5 means how your icons will be displayed on your application. So there are so many different kind of themes. You can choose any one of them. Choose any one of them like this. And because I have taken this very simple color scheme, I'm going to change the color scheme. Then you will see that the interface will change like this in the bright color. So this will look like this. So I'm selecting one of them. This one. I selected this and the interface will look like this. If I select this, then the interface will get changed. It will look like this. If I select this, then the interface will get changed. Means the initial interface will look like this. If I select this, then it will look like this. So which one I should take? कौन सा पसंद है आपको? अभी तो सारे पसंद है, कोई भी ले लें. And there is one more designer interface here. So that is this one. Website, about us, appointment. This looks like good. So I'm going with this now, wherein secure zone is coming on the top and the features are coming this way. And now, Sir, yes, sir, please. here one question. Sir, once we do this theme selection, this will be same, or like can we also edit it in future, sir? Once we done with the application. Actually, Total APK. Actually, this APK, this environment has the limitations because they give you 6 color schemes. So we have to choose one out of these 6. Rather, this is color scheme, but interfaces are a lot here. Means there are more than 10-20 interfaces. So you can select any one of them. But whenever we are going for a ready-made builder, then always some limitations remain there because we are not doing coding. Whenever we are going to change some things, a coding would be required there. Got my point? Okay. So it's like something like how is our website? Once the theme is installed, again, if you want to install a new theme, again you have to uninstall everything and again No. You recreate it. No, nothing. In case you feel that you require to change a theme, then you just have to go through Builder and just change your theme, create one APK file, and once again upload it to the public domain. You have to upload every change in the public domain. Okay. Because okay, yes, because whatever file, like a website, if it is on your system, till the time you saved it in your domain at your computer only, it is with you. But once you published it, it will become public. It will go to the public domain and everyone across the globe can see it real time. The same thing is there when you're going to create a mobile application, then APK file is getting created. And if you want to make a change, the file which is already in public domain, then you have to upload it again there. Got my point? Okay, sir. Okay. Yeah. So I selected this one and going ahead, save and continue. Sir, can we prepare only one application by paying the monthly fee of 99, or we can prepare additional application also if we require? No, you can create one application at the rate of this ₹99 per month. In case you are going to create one more application, then you have to pay extra money to them. And that we can cover later, ma'am. So buy now to edit and test your app. Now this up to here, this allows to do free work, but because I also have a paid account, and now he's saying that in case you are going to create one more application at our platform, then you have to pay 99 rupees per month. And they will charge money, they will bill you for 1 year. So they will not take 1 month's fees. Minimum you have to pay them 1,200 rupees to subscribe their account for 12 months minimum. 12 महीने के लिए आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे
और 12 महीने के लिए एक ऐप क्रिएट करने के लिए आपको 1200 रुपए देंगे, तब वो आपको अलाउ करते हैं। एक एप्लीकेशन के लिए वो 99 रुपीज पर मंथ लेंगे। तो यहां से आगे आपको फ्री वाले अकाउंट में नहीं जाने देगा। इट विल नॉट अलाउ यू टू गो अहेड विद द फ्री अकाउंट। अब इससे आगे क्या करना पड़ेगा? आई एम गोइंग टू शो यू माय account which I have already, and in that particular account I can move ahead, going back to the dashboard. सर ज्वाइन करते समय हमें बिजनेस के नाम से ज्वाइन करना पड़ता है कि पर्सनल नाम से? आप ज्वाइन करते समय तो चाहे बिजनेस से करो चाहे पर्सनल से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से जो आप ऐप क्रिएट करोगे मैम, उस ऐप का नाम जो बिजनेस का होगा वही रखें। ये एपीके फाइल जब अपलोड हो रही होगी पब्लिक डोमेन में, तब आपका उसी नाम से वो अपलोड हो तो ठीक है। अकाउंट आप किसी भी नाम से बना लो, पर्सनल बनाओ, ऑफिशियल बनाओ, डजंट मैटर। तो यहां मेरे पास एक एप्लीकेशन है और मैं इस एप्लीकेशन को एडिट करने का मैंने अकाउंट में पे किया हुआ है, तो आई हैव राइट्स टू एडिट दिस and I have right to convert app to website also, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। I'm going to edit this manage mobile app, manage mobile app, yes। What I can do it here, I can edit my application, I can test this application on my device। So if I'm going for editing, then you will see how I can edit this, मैं कैसे इसको एडिट कर सकता हूं। Yes, so here there are so many features available in this Apify environment. You can just pick from them, means you just have to select which application you are going to use in your mobile app, like about us। जैसे हम वेबसाइट में अबाउट अस का पेज बनाते हैं, वैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन में हम अबाउट अस का पेज बनाते हैं। तो यहाँ हमने लिखा अबाउट मार्गदर्शन, एंड आई हैव पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट हियर, आई हैव रोट थिंग्स हियर। कहाँ लिखा मैंने? ये देखिए यहाँ लिखा है, मार्गदर्शन गुरु द पीपल ट्रेनर्स इज एन ऑनलाइन ट्रेनिंग अकेडमी, अ सर्विस एंटिटी रेंडरिंग दिस सर्विसेज। ये पूरा करने के बाद ये पूरा, एंड आफ्टर दैट I put photographs, me and Satya, and the details about URLs, phone numbers, emails, and everything, whatever you want to put about yourself or your company, your business, your products, whatever you want to share on a single page, so that can be put it here। यहाँ ये देखो, ये ऐसा दिखाई देगा इंटरफेस। On my right side, you can see how beautifully the interface is being displayed, means the images, the content, you have a lot of control to design it, to put it, to customize it। आप इसे बहुत अच्छी तरह यहाँ डिजाइन कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको देता है, इसमें से कुछ हटाना है हटा सकते हो, जोड़ना है जोड़ सकते हो। तो ये एक पेज आपका तैयार हो गया अबाउट अस। अगेन वेबसाइट, इन केस you want to link your website with your mobile application, just what you have to do, you just put one image of that and the link of your website। So we have two websites and we put two website links here। यहाँ एक पेज बन गया, एक फीचर बन गया कि कोई जब भी क्लिक करेगा वेबसाइट पर लेके जाएगा, डायरेक्ट नेविगेट करेगा। आपके ऐप पर किसी ने अगर क्लिक किया वेबसाइट पर जाके, तो वो सीधे आपकी वेबसाइट से कनेक्ट कर देगा। एंड थर्ड थिंग, कॉल। So this is a feature in your mobile application. In case you put this feature there, and if you put your mobile number, then your mobile application will allow your subscriber to direct call you from the mobile application only। वो सीधे आपके मोबाइल एप्लीकेशन से कॉल कर सकेगा आपको, और आपको कुछ नहीं करना। यू नीड नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ दिस प्रोग्रामिंग, यू जस्ट हैव टू पुट योर मोबाइल नंबर। आपको सिर्फ मोबाइल नंबर देना है, यहाँ कंट्री कोड देना है, फोन और ईमेल। इन केस यू वांट टू
change it in the form of email, then you can give the email here. ईमेल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है. आप यहां दे दिया. चौथा फीचर है इंक्वायरी. In case you want to put inquire option there, then you can put inquire option. It is already there. And for inquiry, you can create one form there. Form builder, just create one form. Form builder, you can take it from here, and it is ready-made available. In your inquiry, what you are going to ask with the person: first name, last name, email ID, company name, mobile number, phone number, website, whatever question you want to ask to your visitor or subscriber. So it will come over here. Like all the things are here in the this inquiry form. So here, sorry, like actually, if suppose you want to make some conditions apply, like, you know, mandatory some informations to be given. So can we select those information, sir? Like, for example, in some websites, like, you know, they will say name, number, email ID, that star, they will mention it, say it as conditions apply. So without filling, it won't go to, you know, the submit option. So can we do that way here? Just a minute, sir. Just a minute, sir. Give me 1 minute, please. Okay, sir. So let me check your this query. If it is available, conditions, language setting, advanced settings is there. Zero Sir, CRM. it is available in the screen only, sir. The right hand side, the tick is there. Conditions apply. Conditions Yes, submit. Please, You yes. go the top. Yeah. No, it is there. So it is the language settings subject. Please fill in all mandatory fields. Your request has been submitted successfully, and the languages are there. So just go up, sir. You will find. Yes. This is the case, sir. The star marks in the right side. Star marks. Okay. No, here, sir. Here. Just a minute. Just a minute. Down, sir, on the additional field here, active field name star. Right side. Yes. So no, on the right side, it is not giving you the options. So you just have to either take this option, or you have to change the name of the field only. That's the option with you. It would not give you the advanced options to change and customize it, that whether the mobile number is mandatory or not. I got your point, sir. So you want that without filling mobile number or email, your form would not allow the subscriber, the person or the visitor to submit it. So it should be a mandate to fill the mobile number over there. Is that so? Yes, sir. That you can take it later also, sir. You can give the clarification. Yeah, okay. So that is the contact form. Blog you can add here in your mobile application directly, and it gives wonderful facility to create blogs. You can write your blogs on your mobile application, and it connect WordPress, Blogger, Freeburner, Tumblr, custom blog. In case you write your blog on WordPress, it can connect you from there. And if you write on Blogger, it can connect there. So it has a setting. So you can connect your blogging here. And one beautiful feature of these kind of applications is video conferencing, like I'm doing, like Zoom is allowing you, like GoTo is doing. So we are paying a good money every month to Zoom just for this video conferencing. You and me both are connecting at this platform. So Zoom is charging money. That's why we all are connected at this platform. But in case you are going to create your mobile application, then you need not to pay your hard money to Zoom. So what you can do, you can line up, you can schedule your meetings, your web webinars here, and your web webinars can be conducted through your mobile phone directly. And the beautiful part of this is, if you are conducting these video conferencing through your mobile application, then controls are more greater than you are operating it through Zoom or some other features. यानी अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं मोबाइल एप्स के थ्रू, तो आपके पास बहुत अच्छे कंट्रोल्स अवेलेबल हो जाते हैं. ऐसे कंट्रोल्स हैं जैसे हमारा ऐप है, लाइक वी हैव आवर ऐप.
So you cannot copy or screen record our videos which are uploaded in your mobile app. But if I put my videos on my website, then it is easy to you to copy them. आप वेबसाइट से मेरे वीडियोस को कॉपी कर सकते हो, बट ऐप से नहीं कर सकते. तो आप भी अगर ऐप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगाते हो तो वहां से आपकी एप्लीकेशन, आप वहां से आपका कंटेंट कॉपी नहीं हो सकता. ये बहुत ज्यादा इनक्रिप्टेड होते हैं अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर यहां से यूज करते हो. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर्स कैन बी यूज्ड फॉर फ्री विदाउट पेइंग मनी टू Zoom. That facility is there. So those who want to conduct classes, those who want to conduct the video conferencing sessions, webinars, so such kind of features are very much useful for the people who actually want to do this way. That is, and book live something means your services. You can create your services part here that you can do. And video library, you can put your videos, and videos cannot be copied by the people. That facility can be done here in the mobile app only, which is not available easily in web version. Like we have created this mobile app. ये हमारे वाले हमने पहले से ही अपने YouTube को कनेक्ट कर दिया. सिर्फ YouTube को कनेक्ट किया मैंने चैनल को. I just put the web address of my YouTube channel. Nothing done except this. इसके अलावा कुछ नहीं किया. And you can see every single video we have uploaded so far. Every video is available in mobile application without taking any space or time delay to open it. Isn't that beauty of this? सीधे सारे के सारे वीडियो आपके यहाँ अपलोड हो रहे हैं. अगर आप इसको पब्लिक डोमेन में दे रहे हो उनको वीडियो गैलरी, तो लोग यहीं से कर सकते हैं. और जैसे ही आप अपने चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड करोगे, ऑटोमेटिकली द वीडियो विल गेट रिफ्लेक्टेड हियर. So once you upload a video in future after creating this application, then the application automatically will take that video from your YouTube. So you need not to put your every video in your app. आपको ऐप में अपने वीडियोस लाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे. तो ये एक ब्यूटी है इसकी. ये सारे फीचर्स हैं यहाँ अवेलेबल. अगर आपको कोई और फीचर ऐड करना है तो यहाँ कुछ कस्टमाइजेशन आपको अवेलेबल होता है, बट बेसिक फीचर्स आपके सर्विस ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग या आपका प्रोडक्ट बुकिंग होगा, या वीडियो लाइब्रेरी रखोगे वहाँ, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखोगे, ब्लॉगिंग रखोगे, इंक्वायरी रखोगे, कॉन्टैक्ट रखोगे. यही सारे काम आपके एक एप्लीकेशन में होते हैं, और वो एप्लीकेशन आप इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी आसानी से बना सकते हो. इसे बनाने के बाद जी प्लीज. बुक लिव ट्रेनिंग क्या वीडियो लाइब्रेरी से? बुक लाइव ट्रेनिंग है. बुक लाइव ट्रेनिंग है सर. जैसे हमारे कोर्स, लाइव कोर्स को अगर आप बुक करना चाहते हो तो आप वहां से बुक कर सकते हो. वो बुकिंग, सर्विस बुकिंग का एक एप्लीकेशन है. व्हाट इज बुक लाइव ट्रेनिंग? यस, ओके वहीं से कर सकते हो. जैसे हमारा एप्लीकेशन आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ से एप्लीकेशन दिखाता हूँ. तो ऐप, so this is the laptop interface of the application we have. So in case you see this, then we have our store here. We have created our store, and in this store every course is being listed. यहाँ हमने सारे कोर्सेज रख दिए हैं. यहीं से एप्लीकेशन से कोई भी उस कोर्स को खरीद सकता है. एवरी कोर्स इज बीइंग पुट इट हियर. जिसको भी वो कोर्स परचेज करना है, जस्ट गो देयर, क्लिक ऑन इट, पे द मनी, एंड द कोर्स विल बी इन योर अकाउंट. आपको वो सारे एक्सेस मिल जाएंगे. तो ऐसे ही वहां लाइव ट्रेनिंग की बुकिंग है, वो की जा सकती है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. I'm going, my application has been edited. Now going back to the dashboard, and now manage mobile app. Now what is required? Testing. What changes I have made there? So it is required to test now. अभी मुझे उसको टेस्ट करना है. तो what I will do, I will click here,
test app on device. Test app on device. So this is going to create a APK file here, like you can see on my screen, and you can scan this barcode in your mobile phone handset, and your handset will get that file automatically. यानी ये बारकोड जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आपकी वो फाइल आपके मोबाइल फोन में पहुंच जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, यहां से आप अपनी एपीके फाइल को ईमेल कर सकते हो। तीसरा तरीका एसएमएस कर सकते हो। चौथा तरीका, यहां से लिंक कॉपी कर सकते हो। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने यहां से लिंक कॉपी किया एंड आई एम पुटिंग इट ऑन माय दिस WhatsApp. In WhatsApp, I'm putting in your mobile app and SEO group. मैंने इसको यहां रखा. Yes. Now I will download it and you can see how it will look like on my screen. अभी मैं इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करूंगा. अब आपको ये मेरे स्क्रीन पर दिखाई देगा. एक मिनट लगेगा मुझे, प्लीज होल्ड ऑन. Yes, this is my mobile phone now and I'm going to this file. दिखाई दे रहा है आप सबको मेरे मोबाइल का एक्सेस? मोबाइल दिखाई दे रहा है? यस सर, यस सर. ग्रेट. अभी मैं इस फाइल को अपने मोबाइल, क्योंकि टेस्टिंग मोबाइल पर ही हो सकती है, तो अब एपीके फाइल आपकी यहां. द लिंक इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस ऐप. जस्ट ए मिनट. यस, ईमेल आईडी वहां से डाउनलोड आपके मोबाइल पर हो जाएगा. लिंक इज नॉट अवेलेबल बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी वो फाइल यहाँ स्टोर्ड है. आई हैव ऑलरेडी दैट फाइल इन माय मोबाइल फोन, इसलिए वहां वो इंटरफेस, मुझे पुरानी फाइल हटानी पड़ेगी तो नई रखेगा. अभी मैं वापस उसमें एंट्री कर रहा हूं यहां से. सुयोग इनकॉर्पोरेशन मींस जब आपके मोबाइल फोन पर वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो क्या करना है आपको, आपको एक एप्लीकेशन देता है ये डाउनलोड करने के लिए, दैट इज टेस्ट लैब. टेस्ट लैब आपको डाउनलोड करना है कहां से? गूगल प्ले स्टोर से. ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. टेस्ट लैब. टेस्ट लैब इज व्हाट? इट इज वन एप्लीकेशन टू टेस्ट योर ऐप. टू टेस्ट योर ऐप. मेरे मोबाइल पर ऑलरेडी है. आई हैव ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय हैंडहेल्ड. देन आई वुड नॉट डाउनलोड इट. आई एम जस्ट गोइंग टू अपडेट इट and just will click on update and this will get updated. Oh my god, it's a big file, it will take time. So you have to download this test app application on your mobile phone, then only your APK file will be tested here, because APK file directly doesn't get tested. जो APK फाइल आपकी बनी वो डायरेक्ट टेस्ट नहीं होगी. आपको उसके लिए एक टेस्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, सिंपल. और उस ऐप में जाके आप अपनी एपीके फाइल को टेस्ट कर सकते हैं. कैसे? आई एम गोइंग टू ओपन इट. जस्ट पुट योर ईमेल आईडी. जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया है उस ईमेल आईडी को आप वहां लिखो टेस्ट मेल में. जस्ट ए मिनट, गोइंग बैक. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा स्टेप फंसा है.
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड सो फार? यहां तक सबको पकड़ में आया? एक स्टेप है, एपीके फाइल मोबाइल पर डाउनलोड होने के बाद आपको टेस्ट लैब में ही उसको समझना पड़ेगा. यस, नाउ it is getting opened. Yes, so I just put my email ID because I have my account there and it is showing 3 applications: Margdarshan Guru, Secure John and Lokman Singh. आपने देखा Secure John I have created on my mobile laptop, but it is getting created in my test lab also already. Now, out of these 3 applications, I cannot test the later 2 applications, Secure Zone and Lokman Singh, because I have not paid money for these 2 applications to Appify, but I have paid money for the first one version, first one application, Margdarshan Guru. That's why it will allow me to test this application. So I'm going to demonstrate the first one application only. मैंने एपीपाई को सिर्फ पैसे दिए हैं एक एप्लीकेशन के, बाकी 2 के नहीं दिए, तो मुझे बाकी 2 को वो टेस्ट नहीं करने देगा. जिसके मैंने पैसे दिए हैं उसी को मैं अभी आपके सामने टेस्ट कर रहा हूं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन टेस्ट ऐप एंड दिस वुड navigate me to the interface file of your application. Actually, how it will look like. ये कैसा दिखाई देगा जब ये पब्लिक डोमेन में लोगों के पास जाएगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा इसका डोमेन जो मैंने अपना बनाया. सिक्योर जोन में मैं आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज सिक्योर जोन मैंने पे नहीं किया. तो यहाँ ये एप्लीकेशन है जहां मैंने आई एम नॉट स्क्रॉलिंग एनीथिंग, इट इज गेटिंग डन ऑटोमेटिकली. ये ऊपर जो 4 इमेज हैं वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रही हैं. मेरे हाथ में आप मोबाइल देख सकते हो. आई हैव दिस मोबाइल विच इज गेटिंग मिरर्ड देयर. ये ऑटोमेटिक ऊपर मूव कर रही है, उसका कोलैच मूव कर रहा है. एंड हियर यू कैन सी अबाउट अस, अबाउट मार्गदर्शन. देन एवरीथिंग अबाउट मार्गदर्शन विल कम ओवर देयर. Whatever I have put over there, everything is there. Going back, website. I just put links of all those 2 websites of us, and clicking on one, it will navigate me directly to my website. The website version is being displayed here. Whatever website version was there. ये देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया. दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है, it will also will get opened. आप कितनी वेबसाइट रखना चाहते हो, you can put it there. ये वाली वेबसाइट वर्डप्रेस एनवायरनमेंट है, होस्टिंग स्लो है, इट विल टेक टाइम. ये देखिए, ये हो गया. चलिए, 2 एप्लीकेशन हो गए. कॉल ऑप्शन इज देयर. आई पुट इट ओवर देयर इन केस आई वांट टू कॉल somebody. Immediately, directly, it is connecting call without pressing anything. I just press the call button and it got connected the phone to myself directly. So somebody, if the visitor or subscriber who have downloaded your application in the mobile phone, and if he click on the call button, then directly he will get connected to you over phone. It is calling me. Got my point? ये सीधा आपको, जैसे ही आपने ये फीचर मोबाइल ऐप में रखा, जब भी कोई बटन दबाएगा सीधे कॉल कनेक्ट करेगा. सेम इंक्वायर, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आई एम गोइंग डायरेक्टली टू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो यू कैन schedule your video sessions here. So you just have to email and password, and this will create the video conferencing schedules for you. समझ में आया सबको? ये वीडियो लाइब्रेरी, जस्ट एक और वीडियो लाइब्रेरी देखें आप यहाँ. Oh my God, every video is being fetched from your YouTube channel. आपके YouTube के चैनल से सारी वीडियोस को ये यहाँ ले आया बिना टाइम खर्च किए. आप इनमें से किसी भी वीडियो को प्ले करके देख सकते हो.
क्विकली 10 मिनट लगे आपको एप्लीकेशन बनाने में। बुक लाइव ट्रेनिंग्स इन केस यू वांट टू पुट योर सर्विसेज। मैंने इसमें अभी कुछ रखा नहीं है, अगर मुझे बुक लाइव ट्रेनिंग्स में कुछ कंटेंट रखूं इट विल शो इट हियर। मैंने कुछ रखा नहीं है इसलिए वो उसने खाली दिखाया। यहां तक समझ में आया किसी को? कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं। ये टेस्टिंग हो गया, एपीके फाइल बन गया, टेस्ट लैब एप्लीकेशन में जाके टेस्टिंग हो गया। आज के बाद हमने 3 चीजें सीखी। पहली चीज सीखी हमने वेबसाइट में वर्डप्रेस पर हमने एपीके फाइल क्रिएट की, दूसरा कन्वर्टर से एपीके फाइल क्रिएट की, तीसरा ऑनलाइन बिल्डर पे जाके हमने एपीके फाइल क्रिएट की। अगली एक्सरसाइज में जो परसों करने वाले हैं उसमें हम करेंगे कि कैसे इस एपीके फाइल को गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करें ताकि वो पब्लिक को दिखाई दे। अभी किसी को नहीं दिखाई देगी, ये आपकी क्रिएशन अभी अपने घर में है। सो फार द क्रिएशन इज विद यू, इट इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेड टू द पब्लिक on App Store or Google Play Store. But if you want to make it public, you want to put it on Google Play Store, you want to put it on App Store, then they charge little money from you. So they will charge some money, you have to pay some money, and then you have to create one account over there. In that particular account, you can put your content, you can put your APK files there. Unlimited APK files, कितनी भी APK files रख सकते हो आप, और वो आपको एप्स वहां दिखाई देंगे। ये वाली एक्सरसाइज हम अगली बार करेंगे। आज वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार इन द एक्सरसाइज वी डिड टुडे, सो प्लीज आस्क। इट्स द टाइम फॉर Q&A for 5 minutes, please. So that charge you said, is it for like one APK file, or once we create with Google Play No, Store, it's for one account only, and that account is lifetime, and Google Play Store charges $25 from one account, and in that particular account you can put unlimited APK files, you can put unlimited applications, and they will not charge money further from you. Okay, sir. And can we have payment gateway also, sir, to add to this? Yeah, payment gateway also can be integrated, sir. Okay. And can we have product details also, sir? Like our website? Absolutely. So when you are going to create one application, so that's a by default application, you can do it. So based on that we need to create the theme section. Yes. So you just create one account over there and have a feel of this, and so things are there. Now you have to decide that which one application I should create, either with the WordPress or I should go with this separate builder. And in case क्या दिख रहा है वेबसाइट, वो समझ में नहीं आया। क्या दिखा रहा है? ये 2 क्या दिखा रहा है वेबसाइट, वो समझ में नहीं आया। ये मैम हमारे पास 2 वेबसाइट है हमारी, तो हमने दोनों वेबसाइट के यहाँ पर आइकन रख दिए कि हमारे पास 2 वेबसाइट है। जब भी कोई हमारी किसी एक वेबसाइट एक आइकन पर उंगली दबाएगा तो वो सीधे उसको उस वेबसाइट पर ले जाएगा। जैसे मैं यहाँ पहली वाली पर उंगली दबाई मैंने, तो ये सीधे वेबसाइट पर लैंड कर दिया। अभी यहाँ क्या हुआ आपने देखो, यहां से मैं सीधे प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं इनको। बुक नाउ, आई जस्ट क्लिक्ड ऑन दिस, रादर आई एम डूइंग दिस वर्क ऑन माय एप्लीकेशन, बट एक्चुअली द बुकिंग इज getting happened on where? On my website, because the application is navigated me to my website directly. मेरी जो बुकिंग है वो वेबसाइट पर हो रही है, बट वो वेबसाइट पर मुझे भेजा किसने? एप्लीकेशन एनवायरनमेंट ने। तो ये सीधे यहाँ से एक तरीका है आपके प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करने का। अदरवाइज आप प्रोडक्ट्स को भी सेपरेटली वहां रख सकते हो। सर हिमांशु बोल रहा हूँ। जी हिमांशु जी। जैसे वर्डप्रेस में जैसे साइट बनाया और उसमें एपीके कन्वर्ट किया या वर्डप्रेस के तरीके से लिया, तो सर वो एज इट इज कॉपी बना देता है। जैसे इसमें हम बनाते हैं, इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर जब सर वेबसाइट का और ऐप का लुक एंड फील सेम करने में फिर मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा तो फर्ज आपको हर तरीके से ऐप बनाना सिखाना है, बट अगर आपको लाइव क्लासेस नहीं करनी, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो एप्लीकेशन है इसका, वो एक एडिशनल अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा फीचर यूज नहीं करना, तो आप अपना एप्लीकेशन सीधे वर्डप्रेस में प्लगइन लगाकर बनाओ।
ताकि आपको अपनी सारी मेहनत सिर्फ वर्डप्रेस में एक जगह करनी पड़े। बार बार आप ऐप में जाके चीजें अपडेट करो और फिर वेबसाइट में जाके चीजें अपडेट करो, इतना टाइम आप प्रोफेशनल्स के पास नहीं होगा। ऐप और वेबसाइट आपकी लाइफ को इजी करती हो। टेक्नोलॉजी लाइफ को इजी करे, इसलिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पर टेक्नोलॉजी लाइफ को और मुश्किल में डाल दे, वो काम हमें नहीं करना। तो हमें क्या करना है, एक ही जगह पे चेंजेस करें, अपडेशन करें और वो दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपनी वर्डप्रेस पर ही प्लगइन लगाकर एप्लीकेशंस कन्वर्ट करें। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की नहीं है तो रादर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एप्लीकेशन को भी हम वर्डप्रेस में डिजाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी वहां इंटीग्रेट की जा सकती है। थोड़ा सा कॉस्टली है बट पॉसिबल है, टेक्निकली इट इज पॉसिबल ओवर देयर। सर इस ऐप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिमिट है क्या? यस, एक लिमिटेशन है मैम इसमें। जो बेसिक है उसमें शायद 300 अप टू 300 पार्टिसिपेंट्स के लिए है, बट अगर ज्यादा जाते हो तो उसमें एक कॉस्ट लगती है, पर पर्सन पर आवर कुछ कॉस्ट है, जैसे पर जूम से सस्ता पड़ता है फिर भी। सर एक और बात था, वैसे कितना चार्ज करता है सर? जी, जूम कितना चार्ज करता है सर? जूम मैम अगर आप 100 लोगों का अकाउंट लेंगे तो दे आर गोइंग टू चार्ज अराउंड 1100-1200 रुपीज पर मंथ फ्रॉम यू फॉर द बेसिक अकाउंट फॉर 100 पीपल। फीस एनुअली या बाय एनुअली पे करनी पड़ती है क्या? नो, जूम को आप महीने में पे करना है, अगर एनुअली लोगे तो 20% ऑफ है। पुनीत बत्रा जी, $25 इज नॉट पर मंथ, $25 इज फॉर लाइफ टाइम। ओके सर, एक चीज आप बीच में बोल रहे थे कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली फैसिलिटी है, क्या हम ये फैसिलिटी ऐड करते तो हमारी कॉस्ट बढ़ती है क्या? एब्सोल्युटली नहीं, यहाँ कॉस्ट एज इट इज नहीं बढ़ेगी, ये बाय डिफॉल्ट फीचर है इसमें। बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लिमिटेड है कि वो 500 घंटे, 400 घंटे, 300 घंटे ऐसे फ्री है, फिर उसके बाद वो पर पर्सन कुछ ऐसा चार्ज करता है। ओके ओके, तो सर उसको जूम से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे? जैसे वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है बट उसका बैकएंड में जूम चले, ऐसा कुछ होता है? ये आप कर सकते हैं वर्डप्रेस में। ओके, वर्डप्रेस में आप अपने जूम के अकाउंट को इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अगर किसी ने आपका सेशन बुक किया वर्डप्रेस पे, तो वहीं से सीधा जूम लिंक क्रिएट होके उसको ईमेल में चला जाएगा। तो इसको अगर टेक्निकली समझे, आप कह रहे हो वर्डप्रेस पे क्रिएट किया, इसका मतलब मैं अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस से यूज वो करूं? नहीं, मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, अभी एक और तरीका बचता है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि ऐप चौथे तरीके से कैसे बना सकते हो। तो मैं 4 तरीके बता देता हूँ, आपको ये चूज करना है कि मेरे लिए कौन सा सोफिस्टिकेटेड है। मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि एक जगह ऐप बनाओ और एक जगह वेबसाइट बनाओ। यहाँ एज ए प्रोफेशनल आपको 2 जगह चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी नहीं रहेगी। वर्डप्रेस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर अगर ऐप वहां से बन ही सकता है और कोई पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा, तो क्यों ना आप वहीं से बनाओ और एक ही जगह चीजें अपडेट करो और दोनों जगह दिखाई दें। ठीक है, तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। सर सॉरी, मैं कुछ बीच में टॉपिक समझा नहीं। तो अभी आप ये बता रहे थे कि जो हमें करना है, जो एप्लीकेशन का काम, वो वर्डप्रेस पे ही करें, ये आप रिकमेंड कर रहे हैं? मेरा रिकमेंडेशन है जी। मतलब ये जो एपीफाई पे हमको नहीं करना? नहीं, एपीफाई पर अभी शुरुआत में अगर आपको वेबसाइट नहीं बनाई आपने, या वेबसाइट बनाने में अगर मुश्किल आ रही है, या आपको लगता है मुझे वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा पकड़ नहीं बन रही, ठीक है, मेरे से वहां ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो एपीफाई रेडीमेड एप्लीकेशन है, जाओ अपना सामान रखो, ऐप बन गया और लॉन्च कर दो। अच्छा, और एपीपाई का वो कैपेसिटी है क्या जैसे अमेज़न का कैपेसिटी है? मतलब मुझे एफएमसीजी साइट बनानी है, नहीं, तो एपीपाई का वो कैपेसिटी है? नहीं, बहुत हैवी नहीं है, कस्टमाइजेशन नहीं है वहां ज्यादा। ये तो उन लोगों के लिए जिनको बेसिक एप्लीकेशन चाहिए, बिना ज्यादा मेहनत किए रेडीमेड चीज चाहिए, गए बनाया चल पड़े। सर गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप डालने के लिए क्या रिक्वेस्ट? वो अगली क्लास में मैम, परसों की क्लास पूरा गूगल प्ले स्टोर समझाऊंगा आपको। ओके सर, और एक क्वेरी जस्ट पूछनी थी, अभी आपका जो एप्लीकेशन है ना, वहाँ कैसे आप हमें बैच वाइज अलाउ करते हैं?
वही मैं, वो भी मेरा अगले 10 मिनट का सेशन वो है और 50 मिनट का सेशन वो है। आपके ठीक है, दोनों ठीक है। प्रश्नों का जवाब मैं परसों दूंगा। ओके सर, थैंक यू। सर हेलो। जी जी सर बाकी जो सर ये प्लेटफॉर्म पूछ है रहा था उसकी कि ये जो एपीफाई प्लेटफॉर्म जो आपने बताया, तो अगर जो मुझे अमेजोन टाइप का अगर जो एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए आप कुछ ये आ- कोर्स में है कुछ कंटेंट या नहीं, फिर? वो अमेजोन टाइप का जो बनाना है थोड़ा सा तो हम परसों बताएंगे आपको। और क्योंकि अमेजोन टाइप का कंटेंट बनाने के लिए बहुत जबरदस्त चीजें आपको लगानी पड़ती हैं, तो ओके, वो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। वो एक्चुअली वो सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। जी, ओके। सर बाकी जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि ये एप्स बिल्डर है, ऐप मेकर्स है, इसको भी पेमेंट मतलब पेड सब पेड वर्जन है, है ये या? सब पेड है। सबने इसीलिए बनाए हैं कि हम और आप जैसे लोग जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते वो वहां जाके ऐप बनाएं, और सब पेड है। फ्री में तो सिर्फ आप वहीं से जो आपका वर्डप्रेस और एपी के जो कन्वर्टर मैंने दिया था, वो 2 एप्लीकेशन आपके पास फ्री है। ये एंड्रॉइड स्टूडियो किस लिए लगता है सर, ये एप्लीकेशन के लिए कुछ? एंड्रॉइड स्टूडियो? हाँ वो कुछ एप्लीकेशन कुछ उसमें भी कुछ अलग रहते हैं क्या कुछ? नहीं, मैं समझा नहीं सर, मुझे। ओके ओके सर, मैं जानकारी लेके आपको पूछता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे। मैं बताता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है सर। एंड्रॉइड स्टूडियो वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके ऐप बिल्डिंग होती है सारे के सारे। तो इसमें कोडिंग इन्वॉल्व होती है और हाई क्वालिटी की एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट इसकी पूरी प्रोसेस होती है और प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जितनी भी आप ऐप्स देखते हैं हाई क्वालिटी की, वो सब एंड्रॉइड स्टूडियो में ही बनते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म है गूगल का, उसी में ही पूरा स्टूडियो आपके एंड्रॉइड ऐप्स की डिजाइनिंग होती है। ओके ओके सर, तो वो उसमें अगर बनाना है तो फिर वो अलग टाइप में मतलब कोडिंग ही नहीं, सीखना पड़ेगा? वो कोडिंग सीखना पड़ेगा। कोडिंग हमारे इस कोर्स में नहीं है। ये 3 दिन में जी ना आपका कोडिंग इंटरेस्ट है और ना कोडिंग यहाँ 3 दिन में सिखाई जा सकती है। ये तो आपको जो एप्लीकेशन रेडीमेड चीजें जो अवेलेबल हैं, आपने वेबसाइट बना ली और उसी से आपको ऐप कैसे बनाना है जल्दी से, ये है। कोडिंग बहुत स्ट्रक्चर्ड है। अगर आप कोडिंग सीखते हो तो पहले ये काम कर लो, फिर जाके आपको कोडिंग पे आप बढ़ते जाओ, जितना सीखते जाओगे। बट मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जितने भी हम लोग हैं उनका कोडिंग फील्ड नहीं है। जी जी। इसमें एक चीज का खास ध्यान रखना है, जब आप स्पेशली वेबसाइट है आपके पास और आपके कस्टमर्स केस बढ़ते जा रहे हैं, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगर आप लॉन्च कर दोगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो कि लोग वेबसाइट पे तो विजिट करते हैं, बट एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड कर दें तो अनइंस्टॉल नहीं करते। तो आपसे कस्टमर को जुड़ाव ज्यादा रहेगा अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं। और अगर वो कुछ चार्ज भी देता है, लेट सपोज आपने हमारा कोई कोर्स लिया ईमेल ऑटोमेशन का, आपने 100 रुपीज पे किए और आपने वो कोर्स एसएस एप्लीकेशन में ले लिया, तो क्या वो आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करोगे? जस्ट टाइप यस और इन द कमेंट सेक्शन। अब आप समझिएगा कि एक बार कस्टमर एप्लीकेशन डाउनलोड कर दे, वो हमेशा उसको रिमाइंड करता रहता रहेगा कि आपकी ब्रांडिंग है, आप इस ब्रांड के हो, और वो याद कराने बहुत इजी है। तो लेट सपोज आपने वेबसाइट लॉन्च कर दी, तो अगर आप अपना खुद का ऐप डिजाइन कोडिंग से नहीं कर पा रहे, तो जितनी जल्दी हो अपना ऐप साइड में बना के डाल दें, ताकि कस्टमर आपसे जुड़ा रहे। अगर वो सारी फीचर्स ऐप पे नहीं एक्सेस कर पाता, तो जैसे सर ने बताया वो एक बटन से वो वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएगा, बट कस्टमर को रिटेन करने में ऐप का अभी 20 टाइम ज्यादा रोल है, वेबसाइट का रोल अब इतना नहीं रहा। क्योंकि ऐप आप में से बहुत लोग होंगे जो एक बार ऐप डाउनलोड कर दें तो कितने दिनों बाद उसको अनइंस्टॉल करते हैं। जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। आप सबसे अनुरोध है कि एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया ऐप तो अनइंस्टॉल कब करते हो एप्लीकेशन आप? यस सर। सर यू आर वेरी मच राइट। मुझे सर एक चीज एंड्रॉइड ये अपना ये एप्लीफाई से रिलेटेड और एक पूछना था, एक कस्टम रिक्वायरमेंट है, आप बताइएगा कि पता नहीं इससे रिलेवेंट है कि नहीं। सर जैसे क्या है, एक तो मेरी टीम में 30 से 40 लोग हैं जो लोग वर्क करते हैं एंड जनरली ऑफलाइन मार्केटिंग में वॉक एंड टॉक करके लोगों को जूम्स की मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं by showing their story. We have a program. It is a free meeting जो हम साथ 7 से 8 करते हैं, उसको सब थोड़ा समझिएगा। अब क्या होता है, हम जब वो मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग के पहले 25 मिनट तो इसी में ही चले जाते हैं कि who has invited you, और वो हम उसको नोट करते हैं। और उसके बाद उनको प्रेजेंटेशन देने के बाद हमारा 20-30% उसमें सेल आ जाता है, जो हमारा
मॉर्निंग का जो हमारा जो कम्युनिटी है। अब ये मैं एपीपाई की मदद से मैं ये बस चाह रहा था, एक्चुअली एपीपाई हुआ रिजेक्ट का मुझे पता नहीं कि अभी क्या हो रहा है, जो भी जिसको इनवाइट कर रहा है मार्केट में उसको एक ट्रैक करना है कि भाई इनको इन्होंने बुलाया है। हाँ, एक मिनट सर। हाँ, कौन? पुनीत जी बात कर रहे हैं? सर हिमांशु। हिमांशु जी, हम इसको 1 on 1 कर लें, 7:08 बज Yes, गए। sir. Understood. हाँ, Understood, प्लीज sir. प्लीज। I will ओके सर, call. थैंक यू Thank सर, you, थैंक sir. यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, किसी के और क्वेश्चन है तो प्लीज हमें 1 on 1 पूछ लेंगे, टाइम सर ज्यादा हो एक गया। एक अर्जेंट क्वेश्चन है जो पूछना था, अगर जी जो जी अलाउ करो तो। जी सर बताइए सर। वो जो होस्टिंगर से GoDaddy का कनेक्शन था ना, वो तो मेरा हो गया, लेकिन दूसरा जो था 2 डोमेन लिए थे, तो एक डोमेन स्टकअप हो गया, तो उसमें इश्यू आ रहा था, मैं आपको कल कॉल कर रहा था। आप मुझे 10 से 12 के बीच में कल कर लेना सर, मैं करा देता हूँ, या आयुष को कर लेना, दोनों में से करा देंगे हम निश्चिंत। आयुष भी कॉल नहीं उठा रहे थे कल, इसके लिए कल नहीं मैं उठा कल रहे। आपको कॉल करता हूँ। कल मुझे करो, मैं करवा दूंगा सर। जी ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, and thanks a lot to make this session so interactive, so learning. Hope you learned a lot from here. और किसी को नहीं समझ में आया हो, in case you could not take something or you feel hardship while creating this Apify app, then please connect me between 10 to 12 tomorrow. Thank you. Good night. Bye bye.